हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज का जो टॉपिक है जो कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं इज़ अ वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड ऑफन ऐसी मीटिंग्स पे समिट्स के ऊपर जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। समटाइम्स इवन अगर आप जीएस के अंदर बात करते हैं, जीएस 2 में आया की बात करते हैं, उनके अंदर भी जो है ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज को लेके कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन क्रॉप अप। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि 2021 के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहे थे was the Taliban takeover in Afghanistan. Now that is something that India had been dreading for a while and जैसे कि आपको पता होगा इंडिया का एक झुकाव was towards maintaining a democratic Taliban free government in India. However, with USA pulling out and the Taliban takeover, new circumstances have evolved and obviously India cannot shut its eyes to it, right? So given the evolving circumstances, India will have to take certain measures to ensure that its national interests, even in view of these changing circumstances, aren't really harmed. And one of the ways in which it sought to do the same was via this new meeting called the Delhi Regional Security Dialogue. And this is exactly what the question is all about, right? So let's have a look at the question and the keywords. अब question क्या कहता है? What was the Delhi Regional Security Dialogue, right? So the first part of the question is very simple. The question is trying to trying to ensure that at least आपने सुना हुआ है about this meeting, about this dialogue. So बहुत ही आसानी से वो आपसे क्या पूछ लेता है that at the very beginning आप मुझे बता दीजिए that what was this meeting about, who attended it, क्या इसका मेन आइडिया था, किसने करवाई है, राइट? ये है पहला premise. Next part is slightly complicated. It asks you to examine its main accomplishments as well as the challenges it faces. Right? अब chances are कि आपने पहला जो part है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, right? Within newspapers, editorials, articles में किसी compilation के अंदर you might get an idea about what the Delhi Regional Security Dialogue was. However, you have to delve deeper into किस तरह से इन्होंने काम किए, क्या-क्या main इनकी accomplishments थी, क्या-क्या मेन जो है इनकी recommendations थी, to be able to answer the second part which is all about what did it achieve as well as challenges जो कि ये फेस करते रहेंगे। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए इस आंसर को प्रॉपर्ली एक तरह से अटेम्प्ट करने के लिए? सबसे पहले ऑब्वियस पार्ट है कि आप बताइए कि दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग DRSD आखिरकार था क्या, राइट? कब अरेंज कराया, किसने कराया, कौन पार्टिसिपेंट्स थे, क्या इसका मेन प्रेमाइस था? देन वी मूव टुवर्ड्स द मेन बॉडी ऑफ द आंसर विच इज इसकी अकम्पलिशमेंट्स क्या थी, व्हाट वाज सर्टेन अचीवमेंट्स, व्हाट वाज इट दैट दीज कंट्रीज वर एबल टू अग्री अपॉन, एंड सेकेंडली व्हाट आर स्टिल द challenges that this dialogue and its recommendations continue to face. Conclusion can be on a more positive outlook where we can talk about the way forward of how India can continue to engage with the rest of its partners via other editions of these dialogues so that the issue that it faces in Afghanistan can be appropriately dealt with to ensure that the national security of all these countries is not compromised in any way possible. Right, now let's look at our answer very quickly. Again, we've got the answers in the form of bubbles ताकि आप भी समझ पाए कि क्या इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए, क्या बॉडी के अंदर वेरियस पॉइंटर्स होने चाहिए, so that a proper structured answer can really come across. Now this should be a clean, simple, easy to follow introduction. What is the Delhi Regional Security Dialogue? The DRSD क्या है? अफगानिस्तान पे थी, किसने होस्ट की? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दैट इज अजीत डोवाल ने ये 2021 के अंदर होस्ट की, which brought together basically the security personnel, the security czars, those concerned with the national interests of their countries. Which countries? The countries of Russia, Iran, as well as our 5 Central Asian nations. Now this is something that you should be knowing. Central Asia बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. Central Asia, its relationship with India बहुत ज़्यादा चर्चा में है. So एक thing that you should be focusing on, at least knowing the Central, right? So the Central Asian republics include the countries of Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan,
किर्गिस्तान, राइट, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये आपकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, राइट। सो इन सारी कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया ने ये DRSD जो है कंडक्ट किया, एंड किसके ऊपर ही फोकस था, बेसिकली टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट द सिचुएशन जो कि इवॉल्व कर रही है अफगानिस्तान में पोस्ट द तालिबान टेक ओवर, एंड किस तरह से ये कंट्रीज जो है कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट कर सकते हैं टू इंश्योर कि जो इंस्टेबिलिटी, ये जो सिक्योरिटी क्राइसिस, ये जो इश्यूज जो हैं जो कि अफगानिस्तान में इमर्ज हुए हैं, ये स्पिल ओवर नहीं कर जाते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान बॉर्डर्स टूवर्ड्स दीज countries. Now this is a map so that you get a rough geopolitical idea that why does Afghanistan become so critical. ठीक है, अब यहाँ पे जो maps हैं obviously थोड़े से मिल जाते हैं, so you have to keep this in concern, right, that a lot of times Wikipedia etc पे the maps are incorrect, right. So for example यहाँ पे अक्साई चिन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कई बार वो इनकरेक्टली वहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शंस जो हैं करनी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी आप ये एरिया को छोड़िए, राइट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे लग रहा पाकिस्तान विच कॉजेज अ लॉट ऑफ मिस्चिफ, एंड इसी के साथ जो है लग रहे हैं विच यू कैन सी योर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। सो गिवन द फैक्ट कि अफगानिस्तान के जो स्पिल ओवर्स है, ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि सिर्फ इसी साइड पे आएंगे, उस साइड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है उनके एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर इफेक्ट्स आने का जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यहाँ से ऑब्वियसली रशिया पे पहुंचने का बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये सारे इश्यूज ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं। इनके साथ ही साथ एक और कंट्री जो इसने अटेंड किया था विच इज योर ईरान, ठीक है। तो ईरान के ऊपर भी जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आ सकता है, पर्टिकुलरली गिवन द फैक्ट दैट ईरान के अंदर कौन है मेजर शियाज, एंड इट इज द शियाज हुआ बीइंग जो कि वल्नरेबल कम्युनिटी है आपके अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इसके कारण जो है ये दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट वर सम ऑफ द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ दिस डायलॉग? नाउ सबसे पहले द ऑफिशियल अकाउंट ओनली ऑफ द डायलॉग सेड दैट द मीटिंग एक्चुअली एंडेड अप एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ ब्रॉड यूनैनिमिटी जो कि 8 अटेंडिंग कंट्रीज के बीच में देखी गई थी, कंसिडरिंग द वे दैट दे विश टू अडॉप्ट to tackle the situation in Afghanistan. Now Sujan R. Chinoy very importantly while writing in the ORF says that ये जो dialogue है shows a very proactive approach of India, right? That India has now taken a proactive approach in understanding that this situation is very very critical for the country, and therefore now it wants to proactively enter and participate into the task of building some form of regional consensus on the future of Afghanistan, given the fact that India's security concerns are at stake. Secondly, and very importantly, this meeting was also followed by a very very important statement by all of the attending countries. This statement was called the Delhi Declaration on Afghanistan, and जो main एक premise क्या था इस statement का, that it calls for use against the use of Afghanistan's territory for either sheltering, training, planning or financing any of the terrorist activities. तो हमने इस देखा है given the geographical proximity of the Central Asian republics, Iran and Russia to Afghanistan, ये जो एक issue है of terrorists being harbored in Afghanistan is a huge concern not just for India but for the other 7 countries as well, ठीक है। and that is why ये जो है एक unanimous statement जो है possible हो पाई है। Furthermore, ये जो dialogue है also calls for collective cooperation against what? Against the issues of radicalization, extremism, separatism and another very very important concern which is of drug trafficking in the region. So one thing that you should be knowing that India lies on the golden crescent which passes via Afghanistan, ठीक है। और यही ड्रग का इशू जो है ऑब्वियसली आपके अपर एरियाज एंड साथ वाले रीजन्स में भी फैल सकता है। तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग इज अनदर इशू दैट दे रियली वांट टू
counter। इसके अलावा another very important concern that all the countries agreed upon is the fact that despite the Taliban takeover, तालिबान अब खुद क्लेम कर रहे हैं that we want to make changes, हम जो है better होना चाहते हैं, despite the fact that on ground जो है completely different emerge हो रही है picture, but the fact that they still want to encourage, जितनी भी participating countries थी, still want to encourage some form of an open and inclusive government जो कि masses at large of अफगानिस्तान को represent करे। इसके अलावा विद रिगार्ड टू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन पे भी इस डायलॉग ने कुछ जो है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इन्होंने बताया कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस बना ही इन पर्पसेस के लिए था एंड हाउ यूएन कंटिन्यूज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन अफगानिस्तान एंड इसकी कंटिन्यूड प्रेजेंस बाय से trying to put pressure on Taliban to offer protection to its staff members, to various resources जो कि offer कर रहे हैं, given the fact कि हमें पता है Afghanistan is in a dire situation, right? Given the complete economic collapse of Afghanistan, there are people starving, there are people marginalized, there are people who are really suffering जिनको help की ज़रूरत है, and a critical role can be played by UN to ensure their collective security. Furthermore, the dialogue also underlined that we need to preserve the fundamental rights of the vulnerable communities in Afghanistan, particularly those of women, children as well as minority communities, and ensuring कि तालिबान जो है इनको violate नहीं करते हैं। तो we've actually seen a number of countries जैसे कि US की हम बात कर ले, कनाडा की हम बात कर ले, राइट, जो कि refugees को accept कर रहे हैं, उनको जो है rehabilitate करने की कोशिश कर रहे हैं। women जो है बहुत सारी outspoken women, journalists, स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऑफ अफगानिस्तान, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हाउएवर डिस्पाइट ऑल ये जो एक पूरी ये जो निकल के आई है सिचुएशन, इसको एक तरह से अगर हम कंडेंस करना चाहें इन शॉर्ट वर्ड्स, इन अ शॉर्ट पैरा, तो यहाँ पे अविनाश पालीवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। नाउ पालीवाल सेज दैट एज फार एज द दिल्ली डिक्लेरेशन इज कंसर्न देयर आर टू की टेकअवेज जो कि हम इस डायलॉग से ले सकते हैं। सबसे पहले इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दैट पालीवाल पॉइंट्स आउट, राइट। अब हमें डर है, थ्रेट है टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, रेडिकलाइजेशन का, राइट, जो कि काफी ज्यादा जो है चैलेंजिंग प्रोस्पेक्ट साबित होते हैं फॉर इंडिया एज वेल एज द 7 अंडर अटेंडिंग कंट्रीज। नाउ वन ऑफ द वेज इन विच द डायलॉग रियली हेल्प्स इज इन सेंडिंग आउट दिस मैसेज टू अदर फैक्शंस जो कि मार्जिनलाइज हो गए हैं अफगानिस्तान में, चाहे वो भी एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं, कि देखिए जैसे जैसे हक्कानी नेटवर्क ग्रो स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे पाकिस्तान ग्रो स्ट्रॉन्गर, राइट, वैसे वैसे क्या होगा, वो और भी ज्यादा जो है वीकन होते जाएंगे। सो इट इज एक्चुअली इन देयर बेनिफिट टू काउंटर पाकिस्तान एंड द हक्कानी, राइट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली काउंटर टू इंट्यूशन, राइट। पहले क्या था, हम सबको कंसर्न था कि इंडिया का क्या होगा, पाकिस्तान विल नाउ प्ले मिस्चीवियस, सो ऑन सो फोर्थ। नाउ वी सी, राइट, सिमिलरली चाइना के साथ हम देख रहे थे, चाइना एंडेड अप रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट, चाइना इज हैप्पीली गेटिंग ऑन बोर्ड, हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम। सो देयर वाज दिस फियर कि जो साइनो पाकिस्तान एक्सेस है अफगानिस्तान को पॉन बना के इंडिया के लिए बुरी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। नाउ द सेकंड थिंग दैट पालीवाल इज talking about is that it's not just India which is concerned, but in fact even other countries like Russia, Iran and the Central Asian republics are way more worried about the situation because it is happening clearly in their backyard. Now very importantly another thing that we can interlinkages बहुत ज़रूरी है। The dialogue can be seen as an application of what the Kautilyan strategy जो कि वो अपनी मंडल थ्योरी में बात करते हैं, राइट। मंडल थ्योरी आपको याद है, अगर ये सेंट्रल हमारा विजिक्सु स्टेट है, हमारा नेबर क्या है, हमारा अरी है, इसके साथ कौन है, हमारे मित्र हैं। तो हम जनरली देखते थे that अफगानिस्तान एक मित्र की तरह इवॉल्व होता जा रहा था, and now with the coming in of Taliban it created an issue for us. However, इसी के साथ साथ बात करते हैं कौटिल्य of another very important thing which is your very एक important concept of Akarand which is
फ्रेंड इन द रेयर, ठीक है, आपके थोड़े दूर एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर जो आपके फ्रेंड्स हैं एंड साथ ही में उनके एलाइज भी, राइट। सो बाय कॉलिंग रशिया एंड सेंट्रल एशिया, ये कौन है, हमारे फ्रेंड्स इन द रेयर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉटिलियन फॉर्मेट ऑफ थिंग्स। इनको इनके साथ अपनी एक यूनिटी बना के हम ट्राई कर सकते हैं कॉम्बैट करना एनी मिसचिफ जो कि अरी, हमारा जो अरी है दैट इज पाकिस्तान, ट्राइज टू कॉज इन अफगानिस्तान, राइट। तो यहां पे इंटरलिंकेज करके आप अपने आंसर को और ज्यादा मल्टीफेसेटेड बना सकते हैं। नाउ डिस्पाइट दीज ऑब्वियस अचीवमेंट्स देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच द डायलॉग विटनेस्ड। सबसे पहले श्रीराम चौलिया जो है पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो इंडिया होस्टेड मीटिंग थी, इट पॉइंटेड आउट द जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस जिसके कारण एक यूनिफाइड पैन रीजनल रिस्पॉन्स टू अफगानिस्तान हैज नॉट बीन पॉसिबल, राइट। यूएस पाकिस्तान का एक नेक्सस, चाइना पाकिस्तान का एक नेक्सस, रशिया चाइना का एक नेक्सस, रशिया चाइना का एक नेक्सस, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज everyone is trying to increase their relative position, everyone is trying to ensure their security, and in the end क्या हो रहा है, nobody is able to agree with one another in how to tackle the situation which has come up in Afghanistan. Very importantly, Happyman Jacob point out करते हैं a major challenge for this dialogue. Now he states that Russia और Central Asia दोनों ही ये जो है, राइट, पांचों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एज वेल एज रशिया, इनके पास ना ही एबिलिटी है ना ही उतनी डिजायर है टू परस्यू अ रोल इन अफगानिस्तान autonomous from the larger Chinese or Pakistani designs there, right? So दोनों ही Central Asian republics जो हैं as well as Russia have some sort of relationship with China as well as Pakistan, so they would rather work in tandem with them rather than leading the charge by themselves. And very importantly, another thing that we should know, that despite the fact that the dialogue sent out invites to both China and Pakistan to attend, both of them did not attend this dialogue, and दोनों के दोनों on the other hand did participate on the Troika Plus dialogue on Afghanistan, जिसके अंदर चाइना, रशिया, पाकिस्तान and US थे, but India is missing, right? So there is this fear that already an alternative to an India-led initiative is on the development, and India may be marginalized in the situation as it evolves in Afghanistan. Furthermore, when we look at Iran also, ईरान के बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट हो सकते हैं अफगानिस्तान में, एंड प्लस गिवन इट्स हिस्टोरिकल एक जो सिचुएशन रही है, एक लार्जर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट रहा है, given US sanctions etc due to the failing GCPOA and because of its nuclear program, right, it is unlikely to completely go against the Chinese plans. While India has been an active investor in Iran, so has been China. So the whole idea of beach ka bandar, why should Iran want to really miff either of its two big partners? साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए भी एक catch-22 सिचुएशन पेश करता है. On one hand, if you start engaging with Taliban, Pakistan as obvious will up the ante as far as Jammu and Kashmir is concerned. अगर तालिबान के साथ आप engage नहीं करते हैं, chances are Taliban will get miffed and try to radicalize or extremize elements in India. तो किस तरह से इसको handle करना है becomes a huge dilemma. Another huge issue is that summits on Afghanistan are happening left, right and center. We've been having a Russia-led summit, we've been having the Troika Plus, we've been having now the Delhi Regional Security Dialogue. The problem isn't the happening in summits, but the point is that there is no tangible or concrete impact जो कि ये summits लेके आते हैं, right? चौलिया आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये summits impactful हो, ये सिर्फ तभी हो पाएंगे अगर ये produce कर पाए एक regionally agreed upon governance conditionalities and modalities for humanitarian assistance, right? So ये नहीं हो सकता कि अगर इंडिया बोले हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे अगर आप women या minorities को जो है उनको बुरा ट्रीट करते हैं, बट वहां पे चाइना बोलता है तो क्या हुआ, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, नो डोंट वरी, राइट? सो देन द रीजनल यूनानिमिटी एंड एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस
to protect certain people does not really lead to any benefit, does not really lead to any kind of impact. Similarly, reporting and sharing information on Taliban government, कैसे वो कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही है ऑफ द इस्लामिक स्टेट खोरासान एंड अदर टेररिस्ट फाइटर्स जो कि वहां पे हैं, एज वेल एज क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है ऑन पाकिस्तान। इन सब चीजों के बिना जो है ये समिट्स जो है अगेन पेपर टाइगर्स रह जाएंगे। You know, they will be all presence but no real teeth to them. What should be the way forward? In the way forward, very importantly, Harsh Pant argues that this Delhi dialogue puts India in a very unique position, जहां पे ये जो एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है of any sort of unanimity in Afghanistan, इंडिया एक ऐसी पावर है, एक मिडिल रेंजिंग पावर है जो कि मैन्यूवर कर सकती है अमंगस्ट वेरियस कंट्रीज। इट हैज गुड रिलेशंस विद रशिया, इट हैज डिसेंट रिलेशंस विद यूएसए, इट हैज डिसेंट रिलेशंस विद ईरान, राइट। तो दोनों ही वेस्टर्न एज वेल एज जो ईस्टर्न काउंटर पार्ट्स है उनको इकट्ठे लेके अफगानिस्तान के ऊपर एक कोऑपरेटिव अप्रोच के बेसिस पे जो है ये सिक्योरिटी इंश्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो अफगानिस्तान चैलेंज है, इट इजंट अ शॉर्ट टर्म वन, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म वन, एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच हैज प्रैक्टिस विद दीस सॉर्ट ऑफ इश्यूज, राइट। तो इसके अंदर सस्टेन्ड लीडरशिप चाहिए होगी। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन इज मिसिंग विद बोथ चाइना एंड यूएसए। दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन रिलेटिव इंटरेस्ट, ऑफन फॉरगेटिंग अबाउट कलेक्टिव इंटरेस्ट व्हिच इंडिया हैज शोन it has the एक तरह से capacity to really push for that. Secondly, strategic patience, which has been one of the एक तरह से one of the features of India's foreign policy. तो Happyman Jacob यही argue करते हैं that as far as India is concerned, the options are to coordinate its Afghan policy with whom? With Russia, with USA, with the Western world, as well as keep on engaging with Central Asia, as well as Taliban, ताकि एक प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन लेड अप्रोच जो है पॉसिबल हो पाए, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन इंक्लूड इन द आंसर फॉर अ गुड आंसर। तो इससे जुड़ा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग दीज इश्यूज, कीपिंग एन आई आउट ऑन दी समिट्स, इनके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे, क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, राइट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।